Good morning, all the students. I'm Shivam Saxena, your IT teacher. In the previous module, we have discussed about the ICT, that is Information and Communication Technology, and this chapter was completely covered in the previous video. Today, we will discuss about the new chapter, that is chapter number 8, and the name of this chapter is Components of Computer System. As we know that computer is an electronic machine, a computer is an electronic device that performs the variety of tasks. A number of tasks we can do with the help of the computer. From the very beginning, the most important task that is being done by the computer is the executing. We simply execute the data, and as per the set of instruction that is being fixed with the computer, it simply transmit the data from one place to another place. It's versatile devices and can handle the multiple tasks. At the same time, you can do a number of tasks like while making a PowerPoint presentations, you can play the music. While playing the music, you can do a number of tasks. So all these things can be possible simultaneously with the help of the computer. That's why it is called versatility. Computer is also known as a versatility or versatile device because it can do a number of tasks. If we compare the human being with the computers, so human being can do only a one task or the two tasks, but the computer cannot. Computer can do a multiple task at the same time. Okay, or see that which kinds of the things which can do, like playing the music, managing the datas, devices and various application at the same time you can do with the help of the computers. It is able to execute various tasks due to the speed. देखिए, few things are very much important in the computer. The first is speed, second is accuracy, third is storage capability, and the fourth one is versatility. The work which is being done by the computer is very speedy. Computer can do a lot of work with the very quick responses. Its work is accurate too because it work on the set of instruction that is previously given to the computers only. Next thing, it has very accuracy. The work which is being done by the computer is very much accurate. There is very less chance to be a mistakeful events in that specific task which is being done by the computer. Another thing, it can store the huge amounts of the data, and the versatility too. What does the means of versatility here? Versatility just simply means is it can do a number of tasks. Versatility, it can do a number of tasks, as one human cannot do most of the tasks, but the computer can do a multiple tasks at the same time. So today we'll discuss that how the computer basically functions. It works under the three basic points. The first one we can say input unit, the second is memory unit, and the third one is ALU and the control unit. ठीक है, so these are the basic functions of the computer. और ये basically जो चीज़ें होती हैं ये आपके कंप्यूटर के बेस पे वर्क करती हैं, जिसमें आपका ALU है, वो आपका इनपुट यूनिट है, मेमोरी यूनिट है, ALU है, CU है. ठीक है, so as the name referred, input unit, all the things we need to give the input forms. First we input in the computer, then the memory unit store this particular inputs, and then after the memory unit will transfer and analyze the data accordingly, and then the memory unit transfer this data or informations to the ALU. For an example we can understand, सपोज डैट एक बाइक है. इन बाइक यू विल जस्ट इनपुट इन द फॉर्म ऑफ पेट्रोल. बाइक में आपने क्या किया, पेट्रोल इनपुट किया. उसके बाद आपने उसका जो सेल्फ बटन है उसको प्रेस किया, और सेल्फ बटन प्रेस करने के बाद आपका बाइक स्टार्ट हो गया. तो दिस इज़ प्रोसेस. तो जो CPU है उसका मेन काम क्या कहलाता है, प्रोसेस का. एज द नेम रिफर्ड, इट इज़ कॉल्ड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. तो जितना भी प्रोसेसिंग का काम है वो सब कौन करता है, CPU. CPU मोस्टली डू मेनली प्रोसेसिंग वर्क. ठीक है, जितना भी प्रोसेसिंग का काम है वो सब CPU करता है. एंड CPU हैज़ अ थ्री मेन कंपोनेंट्स. द वन इज़ मेमोरी यूनिट, सेकेंड इज़ ALU, दैट इज़ अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, एंड द लास्ट वन इज़ CO, कंट्रोल यूनिट. सो हाउ इट वर्क्स, जस्ट टेक अ लुक ऑन दिस ब्लॉक डायग्राम. Data and instruction, the two things you can give in the form of input. The one thing is data, another thing is instructions. ठीक है, आप लोग इनपुट में डेटा दोगे या इंस्ट्रक्शन दोगे. जैसे इन्होंने एग्जांपल लिया है, तो हमने क्या किया, सपोज डेटा इनपुट किया. एक एग्जांपल के लिए समझ सकते हैं. लेट्स हैव अ लुक. जैसे यू हैव जस्ट सिंपली गिवन द डेटा लाइक 2 2 + 2.
ठीक है, आपने कंप्यूटर को इनपुट किया 2 + 2, सो इट इज़ बीइंग डन बाय द कीबोर्ड। तो कीबोर्ड इज गोज अंडर द कैटेगरी ऑफ इनपुट। तो कीबोर्ड जो हो गई वो आपकी इनपुट डिवाइस हो गई, तो उससे आपने क्या किया, डेटा को इनपुट किया, एंड दिस डेटा इज़ बीइंग टेकन बाय द कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट ने इस डेटा को ले जाके सीपीयू के अंदर लेके पहुँचे। देन द सीयू यानी कंट्रोल यूनिट टेस्ट द डेटा कि विच टाइप ऑफ द डेटा इज दिस। Then after the CU, if it is mathematical calculated data, then it is being sent to the ALU। CU ने क्या किया, उस 2 + 2 वाले डेटा को ALU को ट्रांसफ़र किया। ALU ने क्या किया, रिप्लाई किया। रिप्लाई इन द सेंस कि ALU ने आपका अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट्स ने उसका आंसर दिया, दैट इज़ 4। ठीक है, उसके बाद ये आंसर किसके पास पहुंचा, CU यानी कंट्रोल यूनिट के पास, और उसके बाद कंप्यूटर कंट्रोल यूनिट ने इस आंसर को किसको दे दिया, आउटपुट। एंड यू कैन सी द आंसर्स ऑन द स्क्रीन, दैट इज़ आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, तो आपने क्या किया, उन स्क्रीन पर उस आंसर्स को देख लिया। सो देखिए, इन दिस वे वी कैन ट्रांसफर द डेटा एंड इन्फॉर्मेशंस इन द कंप्यूटर्स। ठीक है, सो द मेन रोल प्ले अंडर द कंप्यूटर इज CU, दैट इज़ कंट्रोल यूनिट। इट कंट्रोल ऑल काइंड्स ऑफ द एक्टिविटी, and it is a combination of ALU, that is arithmetical and logical unit, MU, that is memory unit, and the is to secondary storage too. If you want to store this data for a long time, so you can use secondary storage। देखिए MU जो है उसका नाम है memory unit। तो जो MU है आपका memory unit you can say, तो MU के अंदर जो कंट्रोलिंग होती है वो आपकी प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, यानी दोनों टाइप की मेमोरी का कंट्रोल जो होता है वो MU के अंतर्गत होता है। यानी MU कैन कंट्रोल बोथ टाइप्स ऑफ द मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में आपकी रैम रोम आती है, और सेकेंडरी मेमोरी में आपकी स्टोरेज डिवाइस लाइक पेन ड्राइव है, DVD है, CD है, ऑल दिस थिंग्स विल कम। देखिए अब बेसिकली आई थिंक दिस इज द ब्लॉक डायग्राम दैट हाउ द कंप्यूटर फंक्शंस। द कंप्यूटर इज जनरली फंक्शन एज द ह्यूमन बॉडीज फंक्शंस। सो इन द सपोज दैट इन ह्यूमन बॉडीज वी सिंपली टेक अ इनपुट विद द हेल्प ऑफ माउथ, नोज। जैसे नोज़ के थ्रू हम लोग स्मेल्स को इनपुट करते हैं, माउथ के थ्रू वी जस्ट सिंपली इनपुट द डेटा। तो ऑन द सेम वे द कंप्यूटर टेक द इनपुट विद द हेल्प ऑफ द कीबोर्ड, माउस एंड अदर्स थिंग। देन आफ्टर हमारा जो मैकेनिज़्म है यानी ब्रेन है या हमारा बॉडी के इंटरनल मैकेनिज़्म है, वो क्या करता है, उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। ठीक है, अब जैसे ब्रेन इज़ वर्क फॉर द कैलकुलेशन, तो ALU हो गया। इसके बाद ब्रेन इज़ ऑल्सो वर्क एज ए मेमोरी, तो इट इज़ ऑल्सो बीइंग कंसीडर एज ए मेमोरी यूनिट टू। एंड देन आफ्टर इन द फॉर्म ऑफ द एक्शन ऑन द वॉइस वी गिव द आउटपुट। जैसे किसी ने हमसे क्वेश्चन पूछा फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज़ द कैलकुलेशन ऑफ 4 + 6, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दैट। सो वी लिसन दिस इन्फॉर्मेशन विद, नाउ यू सी दैट आवर ईयर हैज़ टेकन द इन्फॉर्मेशन, एंड देन आफ्टर आवर ईयर विल ट्रांसफर दिस इन्फॉर्मेशन टू आवर ब्रेन। ठीक है, तो हमारे ईयर्स ने उस इन्फॉर्मेशन को किसको ट्रांसफ़र कर दिया, हमारे ब्रेन्स को। उसके बाद हमारे ब्रेन के पास वो इन्फॉर्मेशन पहुंच गई है, उसके बाद हमारा ब्रेन उसको क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, और प्रोसेस करने के बाद उस इन्फॉर्मेशन का आउटपुट देगा, एंड वी विल फॉरवर्ड दिस आउटपुट विद द हेल्प ऑफ द माउथ। तो माउथ इज़ कंसिडर टू बी द आउटपुट डिवाइस टू। ठीक है, नाउ ऑन द सेम वे द कंप्यूटर्स डू, वी ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ द इनपुट डिवाइसेस लाइक माउस, कीबोर्ड्स एंड अदर्स थिंग्स। देन आफ्टर द इंफॉर्मेशन प्रोसेस, IPO cycle it is called, first you give the inputs and the information is processed and then you get the output. ठीक है, now the components the computer systems are hardware and software, two things are there। देखिए not only in the computers but in your real life we will see that both things over there। जैसे human body जो है वो hardware है, the soul inside of the body is the softwares, both are interdependent, बोथ आर इंटरडिपेंडेंट। ठीक है, यानी इंडिपेंडेंस नहीं है, दे बोथ आर इंटरडिपेंडेंट, दे आर डिपेंडेंट फॉर ईच अदर्स। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ़ यू टेक एग्जाम्पल ऑफ योर बॉडी, a dead body contain the eyes, ears, nose and everything, but it do not contain the souls inside of that. So without soul the dead body is useless. On the same way, without body the soul is useless. On the same way the computers happens. If the computer, you are having a hardware of the computers but you are not having the software inside of the computer, so it is useless. Or you are having the softwares but you are not having the hardwares, then also it is also useless. So hardware is generally considered to be the physical part of the computers. हार्डवेयर को हम लोग जो कहते हैं वो फिज़िकल पार्ट कहते हैं। कंप्यूटर्स की इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जैसे आपका प्रिंटर है, मॉनिटर है, मदरबोर्ड है, रैम है, रोम है, ये जितनी भी चीज़ें फिज़िकल फॉर्म में अपीयर्स होती हैं, दीज ऑल आर द हार्डवेयर। ठीक है, और सॉफ्टवेयर्स का फंक्शन क्या होता है, जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम फील कर सकते हैं, दीज ऑल कंसीडर एज अ
हार्डवेयर, ठीक है। इफ वी टॉक अबाउट द सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ द प्रोग्राम्स एंड प्रोसीजर दैट इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर्स अबाउट हाउ टू परफॉर्म द डिफरेंट टास्क. अ सॉफ्टवेयर enhance the capabilities of the hardware directly the computers to perform the operation like input, process and output. The software can be two type, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. तो आप देखिए सॉफ्टवेयर का मेन फंक्शन क्या है? द मेन फंक्शन ऑफ द सॉफ्टवेयर इज़ टू इनेबल द हार्डवेयर टू ऑपरेट. सॉफ्टवेयर का एक मेन फंक्शन ये होता है कि वो हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए फंक्शंस करते हैं. इफ़ द हार्डवेयर डू नॉट हैव अ सॉफ्टवेयर तो इट कैन नॉट वर्क फॉर दैट. अब देखिए सीपीयू में जो हम इनपुट करते हैं तो सीपीयू के अंदर हम लोग हार्ड मेमोरी यूनिट्स में क्या स्टोर करते हैं? सॉफ्टवेयर. सो वी कंटेन द टू टाइप्स ऑफ द सॉफ्टवेयर. द वन इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड अदर इज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल ऑफ योर मोबाइल फोन. द स्क्रीन, द रैम, रोम एंड स्पीकर्स एंड ऑल द थिंग्स विच इज इनसाइड ऑफ योर मोबाइल फोन इज हार्डवेयर. But if you are not having the Android operating system inside of the computer, so it is useless. So operating system is also considered to be the system software. The system software is the main software that functions that enable the hardware to operate. यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो पहला एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसको हमें कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है. जैसे एग्जांपल के लिए योर मोबाइल फोन कंटेन द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज़ कॉल्ड एंड्रॉइड. इफ़ इट इज़ नॉट इनसाइड ऑफ द मोबाइल फोन इट इज़ डेड. अगर आपके मोबाइल में एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो वो डेड है, या अगर वो किसी भी रीज़न से अनइंस्टॉल हो जाता है तो मोबाइल इज़ डेड, इट कैन नॉट वर्क. और उसके अलावा क्या होता है? एज़ पर योर रिक्वायरमेंट यू इंस्टॉल अ नंबर ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लाइक यू इंस्टॉल व्हाट्सएप, you install WeChats, you install cam scanners, you install multiple app, जिसको आप ऐप बोलते हो, that is the short form of application software. The application software is being made for a specific work. जैसे कॉल करनी है तो उसका एक अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है. वीडियो चैट करना है then there is a different application software. कॉमनली चैट करना है तो वी हैव अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फॉर डूइंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वर्क्स टू. ठीक है. तो एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का मेन वर्क होता है हार्डवेयर के सारे इक्विपमेंट्स को फंक्शन में लाना और उनको इंफॉर्मेशन कन्वे करना. It creates the interface between the user and the computers. Whatsoever you are transferring, the first it is going to be transferred to the operating system and then after it will transfer to the computer systems. ठीक है. ओके. और एप्लीकेशंस इज बीइंग बेसिकली मेड फॉर द स्पेसिफिक फंक्शंस. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का क्या काम होता है? कुछ एक स्पेसिफिक काम के लिए. जैसे व्हाट्सएप है तो उसका कुछ स्पेसिफिक काम है, या आप मान सकते हो कोई भी और एप्लीकेशन है तो दैट हैव अ स्पेसिफिक वर्क. हर एक स्पेसिफिक काम के लिए स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है. जैसे यू कैन टेक अ लुक एग्जाम्पल ऑफ द वर्ड प्रोसेसर. तो वर्ड प्रोसेसर में MS वर्ड है, देन यू गो फॉर द स्प्रेडशीट दैट इज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर. ठीक है. आई थिंक इट इज़ क्लियर. इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम you can write this thing in a comment box. ठीक है. Now we'll move for the next one, the parts of the computer. So the computer contains the basically the different kinds of the parts that we have earlier discussed. जैसे हमने input unit discuss किया था, output unit discuss किया था, then CPU यानी central processing unit हम लोग ने discuss किया था. So in this chapter we will discuss all this thing one by one in detail. ठीक है. तो first हम देखेंगे कि जो input units क्या है. All the units which is stored inside of the computer, these are the devices that is used to provide the input to the computer. ऐसी कोई भी डिवाइस जो कंप्यूटर में या मोबाइल में इंफॉर्मेशन या डेटा को इनसाइड ट्रांसफ़र कर रही है या आपकी इनपुट दे रही है, दैट इज़ कॉल्ड दिस इनपुट. जैसे फॉर एग्जांपल कीबोर्ड है तो कीबोर्ड इज़ अ इनपुट डिवाइस. वेन एवर यू टाइप एनीथिंग इट विल स्टोर इनसाइड ऑफ द कंप्यूटर, तो दैट इज़ द कीबोर्ड. माउस पॉइंटर होता है, आप क्लिक करके कोई भी इंस्ट्रक्शन करा सकते हैं, तो वो इनपुट डिवाइस है. स्कैनर इज़ ऑल्सो द इनपुट डिवाइस. और जॉयस्टिक्स आप गेम्स प्लेइंग करने के लिए, आप प्लेयर्स को कमांड देने के लिए डिवाइसेस को यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द इनपुट डिवाइस. ठीक है. तो दीज डिवाइसेस आर यूज टू ट्रांसलेट द यूजर्स कमांड इनटू द बाइनरी कोड. ये डिवाइसेस का क्या होता है? जैसे आपने कोई भी कमांड दिया, वेन एवर यू आर प्रेसिंग एनी ऑफ द बटन, तो यू जस्ट गिविंग द कमांड and that command is being translated into the binary code and that binary code is being understood by the system software which is being stored inside of the computer system. So in this way they make the inputs over there. The most common used inputs devices are keyboards, mouse, scanners and other things. जैसे example के लिए if you want to send some of the hard copies to inside of the computer, so you go through the scanners, you simply scan these copies and transfer over there. So this is the input devices. On the same way the output units क्या होते हैं? देखिए, these devices are used to display the output. आउटपुट कब आएगा? व्हेन द डेटा इज़ बीइंग प्रोसीड. आपने जो इनपुट दिया है उस इनपुट के अकॉर्डिंग व्हेन द डेटा इज़ बीइंग प्रोसीड देन यू विल गेट द आउटपुट ओवर देयर. ठीक है. सो आउटपुट में क्या है? देखिए, आफ्टर द प्रोसेसिंग एंड कॉम्प्राइजेज द आउटपुट यूनिट्स ऑफ द कंप्यूटर. सम कॉमन यूज फॉर दैट मॉनिटर है,
जो भी आप लिख रहे हो इट इज़ बीइंग डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर, तो आउटपुट यूनिट हो गया। इसके अलावा प्रिंटर है, हेडफोन है, व्हाट्सो एवर द म्यूजिक इज़ इनसाइड ऑफ द कंप्यूटर, व्हेन यू अटैच इट विद द हेडफोन्स तो यू कैन सिंपली लिसन दिस म्यूजिक, ठीक है। इसके अलावा प्लॉटर्स है, स्पीकर्स है, तो दीज ऑल आर द आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। बट दे समटाइम दे शो द आउटपुट्स इन द सॉफ्ट कॉपीज ओनली। सॉफ्ट और वर्चुअल कॉपी वो जो आपकी कंप्यूटर के अंदर डिस्प्ले हो रही है, जैसे ऑल दिस थिंग आर डिस्प्लेइंग इन साइड ऑफ द मोबाइल फोन, तो दिस विल ऑल्सो नोन एज अ virtual copy and the soft copy too. But if you want to get the hard copy of that, so you need a output device, that is printer, because the printer will give you the printing output. Otherwise you will have only the virtual copy, ठीक है। So this both devices are clear, okay। Thank you very much. In the next video we'll discuss about some other function of this computer. Thank you.